معیشت میں استحکام کے اشارے واضح ہو رہے ہیں، بیرونی خسارہ کنٹرول میں آ رہا ہے، غیر یقینی کی صورتحال کم ہوئی ہے۔ یہاں سے ضرورت ہے کہ حکومت سرمایہ کاروں اور عوام کا اعتماد بحال کرے، مگر تحریک انصاف کی حکومت نے جو غلطیاں پہلے سال میں کی وہ اب بھی کرتی نظر آ رہی ہے۔ پہلا سال اس بات میں گزارا کہ ملکی معیشت کی حالت کو اتنا برا بتایا کہ جتنی بری نہیں تھی، اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد کم ہوا۔ معیشت کی حالت بری تھی مگر اسے حقائق سے زیادہ برا پیش کیا گیا، جس سے حکومت پر اعتماد میں کمی ہوئی، ملکی معیشت پر اعتماد میں کمی ہوئی، اور اب معاشی استحکام کے اشاروں کو حکومت جس طرح سے پیش کر رہی ہے اس سے حکومت کی ساکھ مزید کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے حکومت سیاست اور معیشت کو الگ رکھے گی تو ہی ملکی معیشت کے لیے بہتر ہے، کیونکہ بین الاقوامی اداروں کو، سرمایہ کاروں کو معیشت کی اچھے سے سمجھ ہوتی ہے، مگر صرف عوام کے حوالے سے معیشت بتاتے ہوئے مختلف کرائیٹیریا کو اگر اختیار کیا جائے گا تو عوام مسلیڈ ہو جائے، مگر سرمایہ کاروں کو سب سمجھ میں آئے گا۔ آج بھی وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور حماد اظہر نے پریس کانفرنس کی، اس میں اپنی معاشی کارکردگی کو بہتر دکھانے کے لیے جس چیز کا نون لیگ کے دور سے موازنہ کر سکتے تھے اس سے کر دیا، جو چیز محض اکتوبر کے مہینے میں بہتر تھی پھر وہ بتا دی، جو اشاریے 3 ماہ میں بہتر ہوئے وہ بتا دی، اور مہنگائی کا اپنے پہلے سال کا موازنہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پہلے سال سے کر دیا حکومت میں، کیونکہ اس کا موازنہ اپنی حکومت کے پہلے سال سے نہیں کر سکتے تھے۔ باقی اشاریوں کے ساتھ بھی کیا کیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، مگر سب سے پہلے دیکھیے کہ انہوں نے فسکل خسارے کے بارے میں کیا کہا۔ آپ کا فسکل ڈیفیسٹ یعنی فسکل خسارہ اسے کہتے ہیں کہ اندرونی حکومت کی آمدن اور اخراجات کا فرق، اس کو فسکل خسارہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر پچھلے سال کی بنسبت پہلے کوارٹر میں پہلے 3 ماہ میں 50% کمی آئی۔ یہ 1.4% تھا پہلے کوارٹر میں پچھلے سال، 0.7% ہے اس سال۔ اب حماد اظہر نے مہنگائی کا موازنہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پہلے سال سے کیا، مگر فسکل خسارے کا موازنہ اپنی ہی حکومت کے پچھلے سال سے کیا، کیونکہ نون لیگ کا جو فسکل خسارہ ہے وہ نون لیگ کو پہلے سال میں ملا 8.2% تھا، مگر انہوں نے اسے گھٹا کر اپنے پہلے سال حکومت میں 5.5% کر دیا۔ نون لیگ کے آخری سال یعنی 2017-18 میں یہ خسارہ 2200 ارب یعنی 6.6% تھا، اور تحریک انصاف نے اپنے پہلے ہی سال میں اسے بڑھا کر 3445 ارب روپے کر دیا، جو کہ جی ڈی پی کا 8.9% بنتا ہے۔ اس لیے یہ نون لیگ کے پہلے اور آخری دونوں سالوں سے زیادہ تھا، تو حماد اظہر صاحب نے اس کا موازنہ اپنی ہی حکومت کے پہلے سال سے کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ اس کا موازنہ بھی نون لیگ کے پہلے یا آخری سال سے کرتے۔ اس کے بعد ٹیکس ریونیو کے حوالے سے حماد اظہر کا کیا کہنا تھا، سنیے۔ جو آپ کا ریونیو ہے ڈومیسٹک، یعنی کہ جو آپ امپورٹ کے اوپر اکٹھا کرتے ہیں ریونیو، اس کو اگر چھوڑ دیں باقی اس میں 25% کا اضافہ ہے۔ اگر ٹوٹل ریونیو ڈالا جائے جس میں امپورٹس بھی شامل ہیں، کیونکہ امپورٹس آپ کی نیگیٹو جا رہی ہیں، امپورٹ کمپریشن کر رہے ہیں آپ، تو پھر بھی 15% کا اضافہ پچھلے سال سے ہے۔ جو ہمارا ہدف تھا پہلے کوارٹر کا، ہم نے 90% سے زیادہ وہ الحمدللہ اچیو کیا۔ اب حماد اظہر صاحب نے ٹیکس ریونیو کا موازنہ بھی اپنے ہی پچھلے سال سے کیا، کیونکہ نون لیگ اپنے پہلے سال میں ٹیکس ریونیو 1946 ارب روپے سے بڑھا کر 2254 ارب روپے پر لے گئی تھی، یعنی نون لیگ کے پہلے سال میں ٹیکس ریونیو میں 16% کا اضافہ ہوا، اور نون لیگ کے آخری سال میں 3842 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا ہوا، یعنی 5 سال میں نون لیگ نے ٹیکس ریونیو ڈبل کر دیا۔ مگر تحریک انصاف کی حکومت کے پہلے سال میں ٹیکس آمدنی میں 0.4% کی کمی آئی، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں نہیں ہوئی تھی کہ پچھلے سال سے اگلے سال کا ٹیکس ریونیو کم ہوا ہو، اور تحریک انصاف کی 0.4% کی کمی ہوئی، 3829 ارب روپے ٹیکس جمع ہوا۔ اس لیے حماد اظہر صاحب نے نون لیگ کے پہلے سال سے موازنہ کیا، نہ ہی آخری سال سے موازنہ کیا، کیونکہ وہ دونوں ہی تحریک انصاف سے بہتر تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ہی حکومت کے پہلے سال سے اس کا موازنہ کر لیا، کیونکہ وہ کارکردگی بہت خراب تھی۔ اس کے علاوہ حماد اظہر صاحب نے اسٹاک مارکیٹ کی کارکردگی کے حوالے سے کیا کہا، یہ سنیے۔ اسٹاک مارکیٹ اگست سے لے کے اب تک 6500 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ دنیا میں اگست کے بعد ون آف دا بیسٹ پرفارمنگ اسٹاک مارکیٹس۔ پچھلے 3 دنوں میں صرف 1500 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ حماد اظہر صاحب نے اسٹاک مارکیٹ کا بھی موازنہ اپنے پچھلے 2 ماہ سے کیا، نہ کہ پچھلے سال کے 2 ماہ یا 3 ماہ سے، یا پھر نون لیگ کے پہلے سال سے، یا پھر نون لیگ کے آخری سال سے، جیسے کہ باقی دیگر اعداد و شمار کے ساتھ اکثر تحریک انصاف کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ 5 جون 2013 کو جب نون لیگ کی حکومت آئی تو اسٹاک مارکیٹ کا انڈیکس 19,500 تھا، اور ایک سال بعد 30 جون 2014 کو یہ بڑھ کر 29,737 ہو گیا، یعنی 50% کا اضافہ ایک سال میں۔
और जब 31 मई 2018 को नून लीग की हुकूमत खत्म हुई तो मार्केट 45,500 की सतह पर थी। 18 अगस्त 2018 को जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्हें मार्केट 42,450 की सतह पर मिली, जो 29,672 की सतह तक गिर गई, यानी तकरीबन 13,000 पॉइंट्स गिर गई। अब तहरीक इंसाफ 35,243 की सतह पर उसको लेके आई है तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जो अभी भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इस सतह से तकरीबन 7,000 पॉइंट्स नीचे है जिस सतह पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मिली थी। यानी 42,000 पर तहरीक इंसाफ को मिली, 29,000 पर चली गई, अब 35,000 पर है, जो कि 42,000 से 7,000 पॉइंट्स नीचे है। इसे नून लीग के पहले साल से नहीं कंपेयर किया, ना ही नून लीग के आखिरी साल से इसका मवाजना किया, बल्कि खुद अपनी ही हुकूमत के गुज़िश्ता 2 माह का अहवाल बताया। आगे देखिए कि वफाकी वज़ीर हमाद साहब ने बरामदात के हवाले से क्या कहा। अगर आप एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स को ही देख लें तो एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स पिछले साल भी बढ़ रही थी, लेकिन इस साल उनके अंदर हमें काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। मैं आपको चंद चीज़ें देता हूँ। रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं उनके अंदर जो वॉल्यूम है 36% का इजाफा हुआ पहले 3 माह में, पहले क्वार्टर में। बेडवेयर में 23.84% का इजाफा हुआ। चावल के अंदर 52% का इजाफा हुआ, और इस तरह दूसरी चीज़ें भी हैं जिसके अंदर फुटवेयर है उसमें 54% का इजाफा हुआ। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ भी नज़र आ रही है मईशत के अंदर, और ये एक अच्छी चीज़ है। अभी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ का उन्होंने कहा तो बरामदात में उन्होंने कुछ सेक्टर्स के भी सब सेक्टर्स का हवाला दिया, जहां भी नंबर्स नहीं बताए बल्कि उनके वॉल्यूम में जो बेहतरी आई है वो बताया। यहाँ नंबर्स क्यों नहीं बताए, क्योंकि डॉलर्स में कितनी बरामदात हुई क्यों नहीं बताया, क्योंकि डॉलर्स में इस साल के 4 माह में बरामदात में सिर्फ 3.6% का इजाफा हुआ है। पिछले साल बरामदात 7.27 अरब डॉलर्स थी, इस साल 7.53 अरब डॉलर्स हैं। तो हमाद साहब जिसे स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट ग्रोथ कह रहे हैं, कुछ सेक्टर्स के भी सब सेक्टर्स के सिर्फ वॉल्यूम बता के, ना कि नंबर्स बता के, वो दुरुस्त नहीं है। इस तरीके से मिसलीडिंग बात की गई। इसके अलावा वफाकी वज़ीर हमाद ने महंगाई का मवाजना इस तरह नहीं किया जिस तरीके से वो बाकी मवाजने कर रहे थे। जब महंगाई के मवाजने की बात आई तो कैसे किया, देखिए। जितनी इन्फ्लेशन हुई है, जितनी महंगाई हुई है, अगर उसी का हम ज़रा एक कंपैरिजन कर लें बाकी हुकूमतों के साथ जो आजकल काफ़ी इस पर एहतजाज कर रही हैं, पीपल्स पार्टी के पहले 13 माह में औसतन महंगाई की शरह 21.5% थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले 13 माह में महंगाई की औसतन शरह 8.4% थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले 13 माह में महंगाई की शरह 8% है। तो जो लोग आज इस पे एहतजाज कर रहे हैं, और हम तो कहते हैं कि हम खुद समझते हैं कि महंगाई में कमी आनी चाहिए और इंशाअल्लाह ताला आएगी, लेकिन ये लोग जो एहतजाज कर रहे हैं इन्हें ये याद रखना चाहिए कि इनके पहले 13 माह में से कहीं ज़्यादा महंगाई थी। यहाँ फिर क्राइटेरिया बदल दिया। पहली बात तो महंगाई का असर लोग आज यानी हाल में भुगतते हैं, ना कि आज की महंगाई का असर 5 सालों बाद भुगतेंगे। मगर खैर क्या वजह है कि उन्होंने बाकी इशारियों की तरह महंगाई का मवाजना भी अपनी हुकूमत के पिछले माह से नहीं किया, पिछले 3 माह से नहीं किया, पिछले साल से नहीं किया। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अगस्त में 11.6% महंगाई रही, जो जुलाई के 10.3% से भी बढ़ गई, और पिछले साल अगस्त में 5.8% थी। तो ना तो तहरीक इंसाफ के पहले साल से इस वक्त महंगाई की सूरत हाल बेहतर है, ना ही पिछले महीने की सूरत हाल से इस वक्त महंगाई की सूरत हाल बेहतर है। इसलिए इसका मवाजना हमाद साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के पहले साल से कर दिया। इसके अलावा हमाद साहब ने सीमेंट सेक्टर के बारे में बात की, क्या कहा ये सुनिए। इकॉनमी में अगर आप सीमेंट सेल्स को देखें जो आज जिसका डेटा है, उसमें भी बड़ी हमें तेज़ी नज़र आई है। हाई स्पीड डीजल के अंदर हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी नज़र आई है। ये सीमेंट के अंदर तकरीबन 19% का आपको मजमूई तौर के ऊपर अक्टूबर के महीने में आपको तेज़ी नज़र आई है। यहाँ फिर महीने बदल दिए, सीमेंट का बस 1 महीने का डेटा बता दिया, क्योंकि नून लीग के पहले साल में सीमेंट की फ़रोख्त में 3% का इजाफा हुआ, फिर आखिरी साल में 11% का इजाफा हुआ, और तहरीक इंसाफ के पहले साल में सीमेंट की फ़रोख्त में 3% की कमी हुई। इसलिए नून लीग के पहले साल से मवाजना हो सकता था, ना ही नून लीग के आखिरी साल से, बल्कि महज अक्टूबर के महीने की बेहतरी बताई जा सकती थी अपनी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की। अहम बात यह है कि हमाद अज़हर ने पूरी इंडस्ट्री के दादोशुमार नहीं बताए, महज सीमेंट के दादोशुमार बताए, क्योंकि अगर पूरी इंडस्ट्री का हाल देखें तो इस वक्त बुरा नज़र आता है। गाड़ियों की फ़रोख्त देखें तो तकरीबन 39% की कमी आई है पहली सेमाई में। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पहले साल में 3.6% की कमी आई, जो कि पिछले 10 साल में ऐसा नहीं हुआ था, इसमें गुज़िश्ता 2 माह में मज़ीद कमी आई है। स्टेट बैंक के अपने दादोशुमार के मुताबिक जुलाई से अगस्त तक बड़ी सनतों की पैदावार में मज़ीद 6% की कमी आई है, मनफी ग्रोथ है। जबकि नून लीग के पहले साल में
लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी सनतों की पैदावार में 5.46% का इजाफा हुआ और आखिरी साल में नून लीग के में 6.4% का इजाफा हुआ। तो ना तो हमाद साहब इसका मवाजना नून लीग के पहले साल से कर सकते थे, ना ही आखिरी साल से कर सकते थे, ना ही तहरीक इंसाफ के अपने पहले साल से कर सकते थे, क्योंकि उसके मुकाबले में मज़ीद कमी आ गई है। 3.6% कमी थी, 6.6%। अब अगर 6% कमी आ गई है तो सूरत हाल और ख़राब हो गई है, तो इसलिए इसका जिक्र ही हमाद साहब ने नहीं किया। हम आपके सामने कुछ और इदाद शुमार रख देते हैं जो खुद हुकूमत ने जारी किए हैं। GDP ग्रोथ 2012 और 13 में 3.7% थी, फिर ये बढ़कर 2013 और 14 में 4.05 हो गई, यानी नून लीग के पहले साल में ग्रोथ में इजाफा हुआ। इसके बाद नून लीग आखिरी साल में यानी 2017 और 18 में जो GDP ग्रोथ छोड़ के गई वो 5.5% थी, और तहरीक इंसाफ के पहले माली साल में ये कम होकर 3.3% हो गई, यानी GDP ग्रोथ में कमी आई। और इस साल भी बेहतरी की तवक्को नहीं है, इसलिए हमाद साहब ने इसका जिक्र भी नहीं किया, क्योंकि इसमें ना तो नून लीग के पहले साल के मुकाबले में, ना ही नून लीग के आखिरी साल के मुकाबले में, ना ही तहरीक इंसाफ के पहले साल के मुकाबले में कोई बेहतरी आ रही है। हालांकि सबसे अहम बात GDP की शरह में इजाफा होता है। इसके अलावा हमाद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात की, क्या कहा सुनिए। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पिछले 3 साल से इसका नेट फ्लो, यानी बैरून मुल्क से जो लोग यहाँ इन्वेस्ट करते हैं आपकी इक्विटी मार्केट्स में, डेट मार्केट्स में, पिछले 3 साल मुसलसल आउटफ्लो था, यानी नेगेटिव था, ये ड्रेन हो रहा था आपका ये वाला जो हेड है। 3 साल के बाद पहले क्वार्टर में आपको ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव हुई, $350 मिलियन की पॉजिटिव रकम हुई। टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसमें 137% का इजाफा हुआ पहले क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर के। हमाद साहब ने कहा कि $350 मिलियन का इजाफा हुआ है। अब अहम बात यह है कि इसमें बड़ा हिस्सा यानी $322 मिलियन का जो इजाफा है वो डेट सिक्योरिटीज़ की मद में हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में शरह सूद बहुत ज़्यादा है, दुनिया से बहुत ज़्यादा है। दुनिया से सस्ते दामों पैसे लेकर, सस्ती शरह सूद पर पैसे लेके पाकिस्तान के टी बिल्स और बॉन्ड्स में अगर ये पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, जो कि 90% इस वक्त फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बनती है, तो इसका ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, हॉट मनी है, वापस चला जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट भी किया। 19 अक्टूबर को उन्होंने ट्वीट किया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 111% का इजाफा हुआ है, जबकि फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में 194% का इजाफा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो इदाद-ओ-शुमार पेश किए उसमें सितंबर 2018 का मवाजना सितंबर 2019 से किया गया था, और इसमें इजाफे के इदाद-ओ-शुमार को शेयर कर दिया। हालांकि सितंबर 2018 में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। और दिलचस्प बात यह भी है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर जुलाई से सितंबर 2019 का गुज़िश्ता साल की पहली सेमाई यानी जुलाई से सितंबर 2018 का मवाजना किया जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 3.1% की कमी आई। ये वो सूरत हाल है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी कामयाबी को साबित करने के लिए कर रही है, और ये बदकिस्मती होगी कि एक क्राइटेरिया ना इस्तेमाल किया जाए और इकोनॉमी के हवाले से मिसलीडिंग नंबर दिए जाए। हमने हमाद साहब को ये सारे सवाल करने के लिए बुलाया, वो नहीं आए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और नून लीग को बदतरीन बिजली का बहरान मिला, बदतरीन दहशत गर्दी मिली, धरने और सियासी अदम इस्तेहकाम मिला, इदारों की तरफ से तसादुम की फिजा मिली, इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार की अदलिया मिली। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इंटरनेशनल रिकॉर्ड तेल की कीमतें मिली और तहरीक इंसाफ को उनमें से कोई मसला नहीं मिला। दहशतगर्दी का खात्मा मिला, बिजली का बहरान का खात्मा मिला, दहशतगर्दी का खात्मा मिला, बैनुल अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें मिली, इदारे एक पेज पर मिले। और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मुआशी कारकर्दगी का पहला साल गुज़िश्ता हुकूमत के मुकाबले में मायूस कुन है। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो मुआशी सूरत हाल ख़राब थी, मगर उसे ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब बताया गया, सरमायाकारों का एतमाद ख़राब किया गया, गैर यकीनी की कैफियत पैदा हुई, जिसकी वजह से मुआशी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। अब 1 साल के बाद मुआशी सूरत हाल में इस्तेहकाम आ रहा है। तहरीक इंसाफ की अपनी ही ख़राब कारकर्दगी के बाद कारकर्दगी बेहतर हो रही है, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसे अपनी कामयाबी बताने के लिए इदाद शुमार का सालों का, महीनों का इस तरीके से अगर हेर फेर करेगी तो सरमायाकारों को बात समझ में आती है, इससे उनके एतमाद में कमी आएगी और बुनियादी तौर पर मईशत की बेहतरी में इस वक्त जो है हुकूमत की साख मुतासिर होगी, जो कि कतई तौर पर हुकूमत की मुआशी टीम की साख मुतासिर नहीं होनी चाहिए। हुकूमत की साख पर, मुआशी टीम की साख पर और इदाद शुमार पर सरमायाकारों का, अवाम का, मुल्क के अंदर के सरमायाकारों का और बैरून सरमायाकारों का एतमाद रहना चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, काम पर बात करेंगे।